students, I am GUNVANT PATEL from Logic Institute, and today I am with the next lecture of electrostatics. And in this topic, in this lecture, we will study about the electric work as well as electric potential. क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रिक वर्क के बारे में समझना जरूरी हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? अब आपको वर्क के बारे में तो पता ही है, जैसे 11th स्टैंडर्ड में हो चुका था। Whenever the force is applied on the body and the body displaces in the direction of force, that time we can say that work is done on the body. ठीक है ना बच्चों? तब हमने मैकेनिकल वर्क के बारे में पढ़ा था, because the force applied on the body is mechanical force. And in this topic we will study about the electric work. That means there is some kind of electric forces applied on the body. अब इलेक्ट्रिक फोर्स सिर्फ चार्ज के ऊपर अप्लाई हो सकता है। ठीक है ना बच्चों? तो हम देखेंगे, इफ द चार्ज इज डिस्प्लेसेस, whenever the charge q is displaces in electric field E, that time the work done W is equals to F into dr. This is the displacement and it is moving from point A to B. That's why we are taking the integration A to B. ऐसे कुछ होगा तो we will write whenever the charge Q is displaced in external electric field, E from point A to B, then the work done on the charge is W is equals to इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि हमने ए से बी तक का जो पाथ था उसको स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड किया हुआ है। अगर मान लो ए से बी तक ये डिस्टेंस है ए टू बी, तो हमने इसको स्मॉल 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 लेंथ एलिमेंट में डिवाइड कर लिया। एक जो छोटा सा एलिमेंट है ना, हम उसको डी आर लेंगे। अगर ऐसा होगा, फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट the work done dw small work done is F into dr, और सारे dr डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसे dw डिफाइन हो सकते हैं। तो हमने इंटीग्रेट कर लिया a to b F dot dr, and we also know that this F is equals to QE, because whenever the charge Q is placed in electric field, the force acting on the charge is F is equals to QE. ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफाइन कर लिया था। सो दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B F is equals to QE into dr. It's very simplest. ठीक है ना बच्चों? So you can Q as common. आप Q को कॉमन ले सकते हो फ्रॉम A to B E डॉट dr, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। दिस इज द वर्क डन ऑन द चार्ज while displacing from the A to B in external electric field. ठीक है ना बच्चों? अब ये वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है ना बच्चों? इफ Q is positive then work done is positive, if Q is negative then work done is negative. If E and dr both are in same direction, that time W is positive. If E and dr both are in opposite direction, that time W is negative. जब ये opposite direction में होगा तब हम ऐसा बोल सकते हैं the work done against the electric field, तो लिख सकते हैं this is the work done in the direction of electric field. अगर against the electric field होगा तो कुछ ऐसे हो सकता है, when the charge Q is displaced
in external electric field from A to B against the electric field, then work done is, we can say that W is equals to, opposite हो गया ना, so that's why we will take minus Q from A to B E dot dr. अगर ऐसा होगा तो आप नेगेटिव ले सकते हो. इफ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करोगे तो आप पॉजिटिव ले लो, अगर अपोजिट करोगे तो नेगेटिव ले लो. ठीक है ना बच्चों? तो दिस इज द वर्क डन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक वर्क. अब हम यही इलेक्ट्रिक वर्क की वजह से हम ये प्रूव कर लेंगे वेदर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉट. ठीक है ना बच्चों? तो सबसे पहले ये कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो. ठीक है ना? चलो नेक्स्ट. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड है ऐसा प्रूव करेंगे. तो कैसे होगा? देखो ध्यान दो, इट्स वेरी सिंपलेस्ट. कंसिडर दिस इज द कार्टेशियन प्लेन. This is x-axis, y-axis, z-axis. Here the charge capital Q. Okay. This is the position vector of point A. यहां तक, ये जो है ना, ये यहां से लेके यहां तक RA. Position vector of A. We have to displace charge, small q charge, from A to B, and B is at this point. Let us consider B is at this point and it has position vector RB. ध्यान दीजिएगा, ये फिगर थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, एकदम सिंपल सा है. दिस वन इज RB, यहां तक का, यहां से लेके ये RA हो गया. ठीक है ना? दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ A, दैट इज RA. दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ B, दैट इज RB. अब हमें स्मॉल q चार्ज को, ये कैपिटल Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा ना, उसमें हमें A से B तक डिस्प्लेस करना है. और जब भी डिस्प्लेस होगा किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो कोई ना कोई वर्क तो होने ही वाला है. ठीक है ना बच्चों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. अगर आप चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाओगे तो वहां पे फोर्स भी एक्सपीरियंस होगा. तो देयर इज सम काइंड ऑफ वर्क इज डन ऑन द चार्ज. अब ये जो वर्क डन होगा ना, वो आप कौन से पाथ से आप लेके जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है या नहीं है, वो देखना होगा. देयर आर सो मेनी पाथ. आप A से B तक जाने के लिए बहुत सारे पाथ होंगे. जैसे मान लो ये A है, ये B है, तो कोई डायरेक्ट भी जा सकता है, यहां से ऐसे भी जा सकता है. There are so many infinite number of paths. There are infinite number of paths while moving from A to B. आप A से B तक जाने के लिए बहुत सारे पाथ का यूज कर सकते हो. But for our convenience, we will take some paths जिससे हम इलेक्ट्रिक वर्क को इजिली डिराइव कर पाए, मैथमेटिकली इजिली डिराइव कर पाए. इसलिए हम ये समझ पाए whether the electric field is conservative or not. That means the work done in an electric field depends on path or not. अगर वो पाथ पे डिपेंड करेगा तो हम उसे बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव. अगर वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, तो हम बोलेंगे इट्स अ कंजर्वेटिव फील्ड. अगर वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन होगा मतलब RA और RB पे डिपेंड करना चाहिए, वो जो पाथ से जा रहा है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करना चाहिए. तो लेट्स सी. अब B तक जाने के लिए मैं यहां पे कुछ पाथ्स रिप्रेजेंट करूंगा. जैसे मान लो कि मैं पहले A से B तक जाने के लिए A to C जाऊंगा. C
विच हैज पोजिशन वेक्टर आर सी, उसका पोजिशन वेक्टर ले लो आर सी, एंड रिमेंबर दैट दिस आर सी एंड आर ए बोथ आर सेम, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, जितना आर ए होगा उतना ही आर सी होगा, ऐसा समझ लो। मैंने ऐसे ही फॉर माई कन्वीनियंस, फॉर अवर कन्वीनियंस वी विल टेक सच काइंड ऑफ पाथ्स। पहले वो ए से सी तक जाएगा, फिर सी से बी तक जाएगा, तो ये एक पाथ हो गया। फॉर माई कन्वीनियंस मैंने ऐसा एक पाथ ले लिया, ठीक है ना बच्चों। अब दूसरा पाथ कुछ ऐसे लेंगे, पहले वो ए से डी तक जाएगा, D has position vector RD. D has position vector RD which has same magnitude that is RB. B का जो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ना उतना ही D के पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, RB ये डायरेक्शन में, RD ये डायरेक्शन में। जैसे हमने RA और RC लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लिया लेकिन डायरेक्शंस डिफरेंट है, वैसे मैंने यहां पे सोच लिया कि सबसे पहले वो ए से डी तक जाएगा, देन फ्रॉम डी टू व्हाट बी, लाइक दिस। मतलब फर्स्ट पाथ इज, वी कैन से दैट द फर्स्ट पाथ आई एम सिलेक्टिंग इज व्हाट, फ्रॉम ए सी बी, पाथ ए सी बी, ए सी बी, ठीक है ना। इट्स वेरी सिंपल। तो हम ये पाथ के लिए सबसे पहले वर्क डन फाइंड करेंगे, आफ्टर देन ऑनवर्ड्स हम सेकंड पाथ के लिए फाइंड करेंगे। अगर दोनों पाथ में वर्क डन सेम आ गया तो हमें यह समझना होगा द इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, कंजर्वेटिव, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें ऐसा समझना होगा इट्स अ नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना बच्चों। तो हम पहले जो पाथ सिलेक्ट करेंगे वो पाथ था ए सी बी। सो फर्स्ट द वर्क डन फॉर ए सी बी इज इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू बी, कुछ ऐसे होगा। वर्क डन फॉर ए टू सी एंड वर्क डन फ्रॉम सी टू बी, दोनों पाथ का जो होगा उसको प्लस कर लेंगे, क्योंकि ए से बी तक जाने के लिए पहले उसे ए से सी तक जाना पड़ेगा, मतलब वहां पे कोई ना कोई वर्क डन होगा। फिर आफ्टर देन ऑनवर्ड्स सी टू बी, वहां पे कोई ना कोई वर्क डन होगा, तो वो हम सिलेक्ट करेंगे। चलो वर्क डन इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी, remember that it's very simplest, a to c, that is q, we know that e dot dr। चलो अब यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन q dot q c to b e dot dr। what is the angle between e and dr? अब आप जब भी आप e और a से c तक जाओगे ना, उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो ना वो ये उसको टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू q, दैट इज आउटवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज q इज अ पॉजिटिव चार्ज। मतलब आप देख सकते हो कि ये जो हो ना ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड q से आउटवर्ड, मतलब ऐसे हो जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, एंड डिस्प्लेसमेंट ए टू सी मतलब ये डायरेक्शन हो गया, सो दिस इज द dr। सो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं यहां पे q इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी e dr cos 90, because we know that the dot product can be converted into cos theta। theta is the angle between e and dr, और यहां पे for the path a to c the angle between e and dr is 90 degree, that's why cos 90। चलो अब यहां पे कैसे होगा, c to b, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही डायरेक्शन में होने वाला है, आउटवर्ड,
मतलब ये C2B के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, और dr C से B तक जाने वाला हो, मतलब dr also in this direction. Both are in same direction, so angle between them is 0. From C to B, E dr cos 0. चलो ये तो हो गया, इट्स वेरी सिंपलेस्ट. cos 90 का वैल्यू क्या होगा? 0. वी नो अबाउट इट. cos 90 0 होगा, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, मतलब ये वर्क डन पूरा 0 हो जाएगा. cos 90 0 मतलब ये टर्म 0, सो रिमेनिंग विल बी वर्क डन ACB is equals to work done during the path ACB is equals to, ये तो 0 हो गया, ये हो गया EQ from integration from C to B and EDR only. Okay, it's very simple. Q C to B, E, that is KQ by R square. We know about it. This is the KQ by R square into dr. WACB is equals to Q. KQ भी कॉमन आ जाएगा, K कैपिटल Q स्मॉल q, and this is the integration C to B 1 upon R square. So R raised to minus 2 लिख सकते, क्योंकि ये 1 upon R square goes to numerator, so R raised to minus 2. It's very simple as, so we will get K capital Q small q R raised to minus 2, that is minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1. This is the rules for the integration. मैंने इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया हुआ है बच्चों, आप देख सकते हो, ये तो आपको पता ही होना चाहिए. तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, ए से बी तक जाने के लिए पाथ सिलेक्ट किया, A to C, C to B. A to C के लिए E और DR के बीच का जो एंगल था वो 90 था. C से B तक था EDR, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन देम इज 0. ये cos 90 वाला तो 0 हो गया, मतलब ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया. cos 0 1 हो गया, तो EDR हो गया. E का फॉर्मूला होगा KQ by R square. हमने R स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेके गए, मतलब -2 पावर, एक सिंपल सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर लिया. सो दैट्स व्हाई वर्क डन, you can see that. So the work done for A to B via C is equals to K capital Q small q. This is the R raised to minus 1 divided by minus 1. Minus 2 plus 1 is minus 1. Minus 2 plus 1 is minus 1. It's very simple. C to B. चलो अब, so that's why K Q Q ये हो गया -1 अपन R. क्योंकि नेगेटिव पावर होगा तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसका रेसिप्रोकल. ये न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में चला गया. ये -1 तो एज इट इज था, तो माइनस हमने यहां पे लिख लिया. दिस वन इज फ्रॉम C to B. दिस इज द लिमिट्स. सो व्हाइल पुटिंग द लिमिट्स, फर्स्ट पुट द अपर लिमिट. अपर लिमिट इज B. So the position vector of B is RB. So -1 upon RB. अब माइनस आएगा, और ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस. अब आएगा C का लोअर लिमिट. C का पोजीशन वेक्टर है, दैट इज RC. So we will write RC only is equals to K capital Q small q, that is 1 upon RC. पॉजिटिव वाला टर्म पहले लिखेंगे, नेगेटिव वाला टर्म बाद में लिखेंगे. लेकिन आप देख सकते हो, मैंने पहले बताया, हियर RC इज सेम एज RA, मैग्नीट्यूड सेम, एंड RD इज सेम एज RB. ये हमने ऑलरेडी ऐसे मैग्नीट्यूड वाले ही पोजीशन वेक्टर्स लिए थे. दैट्स व्हाई RC इज सेम एज RA. सो वी कैन राइट RA इन प्लेस ऑफ RC. सो हियर we can write like this, K capital Q small q. First we will write the positive term 1 upon RC.
RC is similar to RA, so that's why 1 upon RA minus 1 upon RB as it is. मैंने इसलिए इसको ऐसे कन्वर्ट किया हुआ है RC is equal to RA because we have to move the charge from A to B. मतलब ऐसे हो गया, A उसका इनिशियल था, इनिशियल पोजीशन था, B उसका फाइनल पोजीशन था. अब हमें जो यहाँ पे फॉर्मूला मिला उसमें देखो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन. So work done depends on the initial position and final positions. ठीक है ना बच्चों. चलो यहां तो पता चल गया, एक पाथ मैंने सिलेक्ट किया, उसमें सी का कोई भी इफेक्ट यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि the work done depends only the initial and final positions. This results first. अब हम सेकेंड पाथ सिलेक्ट करेंगे. कौन सा? A D B. अगर तब भी यही फॉर्मूला मिला इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन तो पता चलेगा कि इट डजंट डिपेंड्स ऑन पाथ. अगर वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है सो द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स कंजर्वेटिव. हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड बोल पाएंगे. ठीक है ना बच्चों. तो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं पाथ. नेक्स्ट इज सेकेंड नंबर, which are the path is ADB. ADB. चलो सबसे पहले A से B हो गया, अब A से D, D से B. चलो तो यहां पे भी वर्क डन ड्यूरिंग ADB, वर्क डन ड्यूरिंग ADB is equals to work done during A to D plus work done during D to B. वापस वही रूल, हमने पहले A से D के लिए फाइंड करेंगे, D से B के लिए फाइंड करेंगे, चेक करेंगे whether the work done depends on path or not. Let's see. A to D. So integration Q into integration from A to D, A to D. E dot dr. Similarly, here Q integration from D to B. पहले A to D था, अब D to B था. E dot dr. ध्यान से देखो, it's very simplest. Q integration A to D. E dr. अब चेक करते हैं A to D. A to D इलेक्ट्रिक फील्ड Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वही डायरेक्शन में dr भी है. देखो हम यही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. सो E एंड dr बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. जब भी E और dr दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे सो वी कैन टेक द एंगल इज जीरो. जैसे हमने प्रीवियस C to B में लिया था वैसे यहां पे भी एंगल बिटवीन देम इज जीरो. सो cos जीरो प्लस Q इंटीग्रेशन D to B E dr. चलो D से B तक क्या होगा चेक करो. वी नो दैट D से B ये डायरेक्शन में जा रहा है. दिस वन इज dr and electric field is outward. So the angle between them is again 90. cos 90 is 0. वही सेम रूल यूज करना है. अगर आप पहले पाथ का अच्छे से समझ लेंगे तो सेकंड वाले में इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. ये वाला तो 0 हो गया. अब cos 0 is 1. वापस वही प्रोसीजर ADB डायरेक्ट लिखूंगा. इंटीग्रेशन वापस वही डायरेक्ट लिख सकता हूं क्योंकि आप वही प्रोसीजर फॉलो करोगे सेम, सिर्फ लिमिट्स बदल रहे हैं. जहां C to B था वहां पे क्या आ जाएगा A to D. So K capital Q small q same concept. Final D minus 1 upon RD plus 1 upon RA. चलो जो पॉजिटिव वाला टर्म्स जो है ना वो हम पहले लिख लेंगे. समझ रहे हो बच्चों. आप यहां तक सॉल्व कर सकते हो क्योंकि वही प्रोसीजर. ये E की जगह पे हम KQ by R स्क्वायर लिखेंगे, R⁻², या B to C था, C to B था तो यहाँ पे क्या आएगा A to D आएगा.
समझ रहे हो, वापस ए टू डी, डी और ए वही लिख लिया मैंने, देखो। सो यू कैन सॉल्व बाय योर ओन, ठीक है ना बच्चों। चलो अब सबसे पहले पॉजिटिव वाला टर्म, सो 1 अपन आर ए माइनस आर डी, आर डी इज सेम एज आर बी, ऑलरेडी हमने डिफाइन किया था। सो 1 अपन आर डी की जगह पे आर बी लिखेंगे, बिकॉज ऑफ आर डी इज इक्वल्स टू आर बी। ये तो वापस वही टर्म हो गया, देखो। सो दिस रिजल्ट्स 2, फ्रॉम दिस वी कैन से दैट फ्रॉम 1 and 2 work done during A to B is equals to work done during ACB is equals to work done during ADB is equals to KQQ by 1 upon RA minus 1 upon RB। हम देख सकते हैं कि here the work done depends only the initial and final position, that's why the electric field is what? Conservative field। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? कंजर्वेटिव फील्ड लिखेंगे 10 और लिखेंगे, और ऐसे लिख सकते हैं हियर द वर्क डन डिपेंड्स only on the initial and final positions, initial and final positions। It doesn't depend on path। So the electric field is conservative, is what? कंजर्वेटिव, ठीक है ना बच्चों। तो हमने इलेक्ट्रिक वर्क से हमने ये प्रूव कर लिया कि वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव और नॉट, और हमें ये भी पता चल गया कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक वर्क फाइंड करना होगा तो हमें उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए, और उससे हम डायरेक्ट फाइनल फॉर्मूला यही बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी। सो के क्यू क्यू 1 upon RA minus 1 upon RB, 1 upon RA इनिशियल पोजीशन माइनस 1 upon फाइनल पोजीशन, ठीक है ना बच्चों। इट्स अ वन ऑफ द फॉर्मूला, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट कॉपी दिस, आफ्टर देन ऑनवर्ड्स वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले ये कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके आप अच्छे से कॉपी कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। कॉपी